Hi, hello, and welcome back to the weekly webinar of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Well, before entering to the weekly webinar, let's take the brief introduction of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Thank you so much for your wait, and let's move ahead onto the introduction part. Basically, Rajalakshmi Solutions Private Limited is into software sales, support, and customization. And we deal with multiple softwares as well as services. So let's see what are the different softwares with which we are involved into. We are part of Tally Prime, an accounting software, and we are part of SAP Business One, a key for every business solution. And we are part of Bitwig CRM, a customer relationship management software. And we are part of Skill India, a government project which is specifically concerned for the education and employment of students. Well, these are the four different softwares we are part of. And to be specific in this pandemic, we are up with multiple softwares. Again, that is all about Tally on Cloud, specifically to work from anywhere and everywhere. And we are part of HR services as well as digital marketing services. In this current scenario, I think these are one of the most essential and important part. And let's see what we do with all these softwares. Basically, we are part of sales. After sales, we do support the customers, and we are part of customization, and we are part of advisory as well. What is this advisory? Again, a question mark. So advisory is nothing but we just check out the distracted organization, the to choose the right software, to choose the right system process for an organization in terms of product and in terms of process as well. So that's the reason altogether we are working 24/7, and we check out with the complete process of organizational system. So this is all about Raj Lakshmi Solutions Private Limited, and let's get into the few instructions towards the webinar. First and the foremost thing is this webinar is getting recorded because onto every session we get a feedback that the customers actually require the recording. So let me just be very clear here that the webinar is getting recorded, and by a couple of days the webinar will be updated into our YouTube channel. So all you need to do is do subscribe our YouTube channel and do check out. We are in all the social media platform. So staying active really matters, and we are like on to date onto social medias. So you can even check out multiple offers, what we are on and off onto different product as well as different services. So start following our YouTube channel and other websites, social medias as well. Onto the like comment section, you can see we have updated the details, the contact details of our organization, as well as we have forwarded you multiple links as well, wherein you can directly be routed out towards the link. Well, this is all about the instructions. And apart from this, if you have any doubts or questions onto today's session, request you to please just leave a space, give a space to the speakers. By the end of the session, we can have a discussion onto this particular topic. So let's enter into today's webinar. The topic is all about hotel module and Tally Prime. Yes, specifically onto Tally Prime, we can customize multiple things and we can add on multiple things. So Raj Lakshmi is really an expertise onto all these things. So now let's get into the details. Before that, let me introduce the speakers today. So we have a speaker that is like the theoretical presenter, and we have a live demo presenter who would be showing onto the software how it exactly works. And today, unexpectedly, the overview speaker, Mr. Bhagwati, is not available. So let's move ahead with the like theoretical presentation and the live demo. So we have the speakers here. Let me introduce the speakers. So Mrs. Diksha, are you here? Yes, ma'am. Hello. Hi Diksha, hearty welcome to the webinar. Yeah, thank you, ma'am. And you are welcome. And we have Mr. Sahil with us. So like Mr. Sahil, are you here? Yes, ma'am. Hi, Mr. Sahil. Thank you so much for joining us. Thank you, ma'am.
Well, so we have two people here, the theoretical presenter and like the demo presenter. So let's get into in detail onto today's topic. So it's over to you, Mrs. Diksha and Mr. Sahil. So like request you to please introduce yourself and move ahead towards the topic. So, hello, good evening, everyone. My name is Diksha, representing behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Just a minute. So this is yeah, my screen is visible, ma'am. Yes, it's visible. Move ahead. Okay, thank you. This is our Raj Lakshmi family. So coming to our topic, this is that is hotel management module in Tally. So let's see what is the tool and how to work in Tally. Hotel management module. Hotel management on Tally Prime is the best solution designed for hotelier to manage their daily operations and monitor their workforce activity. जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग ओकेजनली बोलो या फिर कोई बर्थडे रहेगा, कुछ रहेगा, तो हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम होटल्स में जाते हैं, डिनर करते हैं या फिर सेलिब्रेशंस करते हैं. तो वहाँ पे जैसे हम लोग जो भी वर्क्स उनके रहते हैं, रूम्स के लिए बोलो या फिर कुछ खाने के लिए बोलिए या फिर कुछ सर्विसेज उनके रहते हैं, वो जिस भी तरीके से मैनेज होता है, वो सारा वर्कफोर्स कैसे एक्टिविटीज करते हैं, वो टैली के अंदर हम लोग मॉड्यूल के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं. Second point, this module has pre-built module for check-in, check-outs, restaurant services, etc. to easy to daily work for the hotel staff. For instance, staff member can create room and label the room and categorize them separately as per their price types and etc. जैसे कि होटल्स में जब भी हम लोग जाते हैं, कुछ रूम्स बुक होते हैं, वहाँ पे सर्विसेज रहते हैं, वो सर्विसेज हम लोग लेते हैं, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो इजीली कैसे मेंटेन कर सकता है, ये मॉड्यूल्स के अंदर आपको दिया हुआ है. तो जैसे कि रूम्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एसी वाले रूम रहते हैं, नॉन एसी रूम रहते हैं या फिर अदर टाइप्स रूम रहते हैं, तो वो सारे हम लोग जो मैनेज करते हैं, तो वो सारे हम लोग प्राइजेस उसके या फिर उसके अलग अलग टाइप जो है वो मॉड्यूल के थ्रू अपडेट कर सकते हैं टैली के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट, होटल मैनेजमेंट ऑन टैली प्राइम eliminate the scope for double or overbooking by using above mentioned hotel outlet. It also helps hotel owner accurately manage their finance by keeping track for all the expenses and revenue from the single place. जैसे कि टैली के अंदर हम लोगों ने ये भी फीचर दिया हुआ है कि जैसे कि हम लोग रूम बुक करते हैं, जो भी जिस भी तरीके का रहेगा रूम रहेगा, इधर कोई सर्विसेज रहेंगे, तो जो हम लोग लेते हैं वो मेंशन कर सकते हैं टैली के अंदर, और उसी वही फील्ड को लेके हम लोग उसको उसके एक्सपेंसेस हो गए या फिर कोई अदर खर्चा हो गया या फिर रेवेन्यूज हो गए, वो एक ही जगह से हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, होटल मैनेजमेंट ऑन टैली प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स फॉर बिलिंग. It is a one-stop solution that allows different working team of the hotel to assign and report their activities seamlessly. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि होटल मैनेजमेंट जैसे कि हो गया आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया या फिर कुछ अदर सर्विसेज जो होते हैं हम लोग जो होटल के थ्रू लेते हैं, तो वो सारे कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. उसकी जो एक्टिविटीज जो होती है वो यहाँ पे रिपोर्ट वाइज हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल यूज द टैली प्राइम इंटीग्रेशन फॉर द hassle-free account management. It helps hoteliers track and manage their inventory in real time. Plus, it helps with cost analysis assessment for all the expenses. जैसे कि होटल का जो भी बजट रहता है उसके हिसाब से आपका मैनेज हो रहा है कि नहीं, ये सारे रिपोर्ट्स या फिर आपको जैसे कि जो मैनेजर है उनका अकाउंट्स जो चेक करना है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. So this was all about theoretical parts of hotel management customized tool.
Now it's time to see the practical of hotel management tool. I request to Sahil sir to show live demo of this tool. Thank you so much, everyone. Thank you, Diksha. Thank you, sir. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द राज लक्ष्मी वर्ल्ड। आई एम साहिल हियर। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होटल मॉड्यूल इन टैली। तो आज हम देखेंगे कि होटल के जितने भी फंक्शन होते हैं, जो भी उनकी बिलिंग, रूम वगैरह, कैसे हम टैली में भी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि टैली क्या है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिक इन द सेंस हमारे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के लिए प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर है। बट हमारा जो होटल का चीजें होती है, होटल के रिलेटेड जो चीजें हैं, लाइक उनके जो स्टाफ होते हैं, उनका रूम होता है, वो कैसे यूज करेंगे वो हम आज देखेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैली जो बिना कस्टमाइज होता है उसमें थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होती है यूज करने के लिए, कि हमारा जो रूम है वो कैसे हम मेंटेन करेंगे। रूम के बाद जो हमारा किचन है, जब भी हमारा कोई टेबल होता है रेस्टोरेंट में, टेबल पे बंदा आता है, जब भी वो ऑर्डर देते हैं तो क्या ऑर्डर देता है, कैसे हम आगे स्लिप बना के आगे भेज सकते हैं, और कैसे उनकी बिलिंग होगी, और कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेबल हमारा बुक है, कौन सा रूम हमारा बुक है, और कौन सा रूम हमारा अभी फ्री है जिसमें कि हम बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टैली पे। टैली में हम अपना मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली जैसे हम अपने टीसी पे लगाते हैं तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे एक ऑप्शन दिखने लगता है, होटल मैनेजमेंट। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है होटल मैनेजमेंट का, ये प्रॉपर कस्टमाइज, और हमने प्रॉपर उस फील्ड को कस्टमाइज करके हमने इसमें दे रखा है कि हमें जो होटल से रिलेटेड है, लाइक टेबल नंबर, रूम, और जो हमारे जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है जो कि उस टेबल को या उस रूम को हैंडल कर रहा है, वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे कि कौन सी टेबल को कौन पर्सन है जो हैंडल कर रहा है। और प्रॉपर हर एक चीज रिपोर्ट देखेंगे कि कितना हमारा बिलिंग हुआ है, रूम कौन सा हमारा बुक है, अगर वो बुक है तो क्या हमें दोबारा वो देगा और हमें बताएगा कि हमारी ये रूम बुक है, किसके नाम बुक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम चलते हैं अभी होटल मैनेजमेंट का जो हमारा टूल है, जो ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रखा है हमने कि कुछ फील्डें हैं जो हमने पहले से ही सेट कर रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, वहां पे जैसे आप ऑटो सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी मैंडेटरी चीजें लाइक वाउचर टाइप और उनसे रिलेटेड जो भी है लेजर, वो हमारा ऑटो क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमें जाके मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो ऑटो सेटअप हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मास्टर्स। मास्टर्स में क्या है कि हमारे जो होटल है उसमें क्या क्या चीजें हमें नेसेसरी है। मास्टर लाइक जैसे हमारा इन्वेंट्री हो गया, या लेजर हो गए, जो हमारे वेंडर हैं उनका हो गया, उससे रिलेटेड होता है मास्टर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा है टेबल, स्टेवर्ड इन्फो, रूम्स टाइप और रूम्स मास्टर। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा। जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है क्रिएट अल्टर डिस्प्ले। जब हम क्रिएट करने जाएंगे तो हमें वो पूछेगा नेम। हम अगर टेबल का नेम कुछ भी देते हैं, उसके आगे हमें वो पूछेगा लिस्ट ऑफ स्टोर, मतलब जो पर्सन है, कौन सा पर्सन इस टेबल को हैंडल कर रहा है। अगर हमारा प्री डिफाइंड है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पर्सन हमारे टेबल को वो पर्सन टेबल को देख रहा है। ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टेबल 1 दे रखा है, टेबल 1 मैंने भुवन को दे रखा है, तो मतलब ये टेबल 1 जो है वो भुवन ही हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, जो हमने अभी वो पर्सन का नाम क्रिएट किया भुवन, उसके लिए हमने ऑप्शन दे रखा है मास्टर क्रिएट कर स्टेवर्ड इन्फो में। इसमें आप वो पर्सन को क्रिएट कर सकते हो, जो जितने भी पर्सन है आपके होटल में, जितने भी एम्प्लॉय हो, उनके नाम के अकॉर्डिंग, जो भी टेबल को हैंडल करते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूम टाइप्स। रूम टाइप्स बेसिकली ये है कि जो हमारा रूम है वो नॉन एसी है, एसी है या सुपर डिलक्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब हम अपना रूम क्रिएट करने जाएंगे तो हमें वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये अगर रूम नंबर 101 है तो वो एसी है या नॉन एसी है, रूम नंबर 202 है एसी है या सुपर एसी है, वैसे ही हमने सारा दे रखा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली रूम का टाइप बता रहा है कि किस किस टाइप के हमारे पास रूम अवेलेबल है। देन उसके बाद रूम मास्टर। रूम मास्टर में हम क्या क्रिएट करते हैं कि जो हमारा रूम है उस रूम का नंबर, या आप नेम से भी क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए हमने नंबर से क्रिएट कर रखा है। क्योंकि रूम के जो रूम जब भी होता है, जो भी रूम होते हैं वहाँ पे नंबर वाइज होता है कि 101, 102, 103। देन रूम का टाइप, किस टाइप का है, एसी है नॉन एसी है। देन उसके बाद रेंट, उसका जो रूम का 1 डे का जो भी रेंट है वो हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद चेकआउट टाइम। देन उसके बाद रूम के डिस्क्रिप्शन,
अगर उस रूम के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपके मास्टर प्रॉपर क्रिएट हो जाएंगे। देन उसके बाद ये हमारा हो गया नॉर्मल जो हमारे जो हमारे होटल्स में यूज होते हैं वो मास्टर हमारे लिए यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हमारे जो होंगे जो हमारे स्टॉक आइटम होंगे, लाइक जो भी चीज हमारे होटल पे बनता है रेस्टोरेंट में, वो हम क्रिएट करेंगे। वो हम नॉर्मल स्टॉक में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाके वहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जैसे हो गया आलू पराठा है, आलू बनाना शेक है, जो भी चीजें हमारे रेस्टोरेंट में बनती है वो सारा हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मास्टर सारे क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने होटल मॉड्यूल में। यहाँ पे हमारा अब ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन का। रेस्टोरेंट बिलिंग है, पार्सल है, सेल्फ सर्विस का है, रूम अवेलेबिलिटी का। तो हम सबसे पहले जाएंगे रेस्टोरेंट बिलिंग। रेस्टोरेंट बिलिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा टेबल। ये इसलिए दिया गया है टेबल का क्योंकि जब भी रेस्टोरेंट में कोई बंदा आता है तो सारे टेबल का एक नंबर होता है कि इस टेबल का ये नंबर है ये। तो अगर कोई भी बंदा कहीं आता है, अगर एक टेबल बुक करता है, लाइक अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारी 3 टेबल बुक दिख रही है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, क्योंकि वो रेड कलर अगर है तो मतलब टेबल बुक है। अब हमारे जो टेबल फ्री है जिन पे कोई नहीं आया, अब हमने टेबल 4 पे वो आया बंदा, वो बैठ गए टेबल 4 पे, फिर हमने क्लिक किया, टेबल 4 का ऑर्डर आया। अब हम ऑर्डर लेने जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो KOT दिख रहा है, किचन के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं। अब जो टेबल 4 का बंदा है उसने क्या क्या ऑर्डर दिया, लाइक आलू कुलचा, वो पीस कितने क्वांटिटी चाहिए, देन रायता मैंने ले लिया, उसके बाद रोटी। इतनी चीजें टेबल नंबर 4 से हमें ऑर्डर मिल रही है। अब ये हमने जब यहाँ पे एंटर किया तो हमें किचन में देने के लिए एक स्लिप चाहिए होगी, क्योंकि किचन में तो हमारा ऐसे नहीं जा सकता टैली, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। ये जैसे आप प्रिंट करोगे, यहाँ पे प्रॉपर डिटेल रहेगा कि जो टेबल नंबर है उस टेबल नंबर का और कौन सा पर्सन है, उसके बाद क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें उसने ऑर्डर दी है, किस क्वांटिटी में, तो वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और ये स्लिप निकाल के किचन के डिपार्टमेंट को ये दे दिया जाएगा। अभी क्या हुआ, किचन डिपार्टमेंट के पास ये बिल पहुंच गया। अब किचन डिपार्टमेंट ने बना के दे दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे टेबल नंबर 4 जो है रेड कलर हो गया, मतलब कि वो बुक्ड है और वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर चल रहा है। नेक्स्ट में हम आएंगे जब किचन डिपार्टमेंट जो भी चीजें बना के रेडी करके कुक करके डिलीवर कर देता है, देन लास्ट में आता है हमारा बिलिंग का। तो अभी क्या होगा कि हमारे जो टेबल नंबर 4 पे क्या क्या गया है वो भी हमें देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी बिल तैयार होनी चाहिए। तो हम जब टेबल नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा कि क्या क्या वहाँ पे गया है किचन में, आलू है, बूंदी है, रायता है। देन हम यहाँ पे बिल का ऑप्शन है, बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बिल पे क्लिक करेंगे वो दिखाएगा ऊपर जो हमारा टेबल नंबर है, उसके बाद जिस पर्सन ने, देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो किचन में ऑर्डर दे रखा वो हम सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो जितना भी चीज क्या है, जितना भी ऑर्डर, जो भी चीजें उन्होंने मंगाया था, जो जो चीजों का ऑर्डर दे रखा है उन्होंने, लाइक आलू कुलचा, बूंदी रायता, बटर रोटी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपको उस पर्सन का नाम क्रिएट करना है, उनके अकॉर्डिंग उनका सारी चीज डिटेल फिल करनी है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके प्रॉपर उनका लेजर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेजर रेडी नहीं करना, डायरेक्ट आपको बिलिंग करनी है, तो आप एंटर करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे इनकेस उनका मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। मैंने बायर के नाम पे दे रखा है क्योंकि ज्यादातर क्या होता है रेस्टोरेंट में मोबाइल नंबर ही मांगा जाता है। आप उनका नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आप जो भी आइटम एंटर करते करते आगे जाएंगे, ऑटोमेटिक उसका रेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैकएंड में रेट का ऑप्शन दे रखा है, रेट को हमने फिल कर रखा है, बेसिकली हमने प्राइस लेवल बना रखा है कि किस प्राइस लेवल में क्या 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 रेट है, किस आइटम का कितना रेट है, उसके अकॉर्डिंग वो रेट बैकएंड से फिल कर रहा है। देन आपका CGST SGST लग जाएगा अगर वो लोकल है। अगर वो कहीं आपका कभी कभी होता है क्या है कि रेस्टोरेंट में आते हैं तो वो कंपनी के नाम से बिल बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो पार्टी का ऑप्शन है वहाँ पे कंपनी के नाम से पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसका GST नंबर, और उसके अकॉर्डिंग वो बिलिंग होगी। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या वो कैश दे रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के उससे, वरना कैश से कर रहे हैं तो कैश से। अभी तो मैं कैश से ले रहा हूँ इसको। इसका हम प्रिंट भी देख लेते हैं कि जो हमारा इनवॉइस रहेगा वो कैसे प्रिंट होगा।
ये इनवाइस हमारा प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा और ये इनवाइस हम जो कस्टमर रहेगा उनको दे देंगे। ये बिल मैं सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आप देखिए, जब हमने उसका बिल नहीं बनाया था उस टेबल का, तो ये टेबल नंबर 4 हमारी रेड कलर की थी, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड है और यहाँ का बिल अभी वीकली ऑर्डर चल रहा है। जैसे ही हमने उसका बिल बना दिया, वो टेबल आपकी फ्री हो गई है। इस यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी टेबल हमारी बुक्ड है, कौन सी टेबल हमारी फ्री है, किस टेबल का ऑर्डर हम ले रखे हैं, किस टेबल का ऑर्डर अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्सल। पार्सल वाउचर तो नॉर्मल आपका एक वाउचर है, यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा, ऑर्डर देगा और पार्सल लेके चला जाएगा। ये नॉर्मल एज जैसे हमने बिलिंग कर, बेसिकली जो हमने बिल वाला फॉर्मेट देखा था वो ये नॉर्मल कि हम डायरेक्ट उसको बिलिंग करेंगे और उनका पेमेंट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चले जाएंगे। सेल्फ सर्विस, बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, सेल्फ सर्विस और पार्सल देखा जाए तो एक अप्रोक्स सेम है, बट पार्सल का जो मेन वो था हमारा बनाने का, वो बेसिकली ये था कि हम कॉल पे करते हैं, कॉल से उनको ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देके हमने बुक कराया है, जो भी चीज हमारी थी वो रेडी हो गई, हम गए और वहां से हमने सामान लिया और चले गए। सेल्फ सर्विस हम खुद जाके ऑर्डर दे रहे हैं और तुरंत ही हम वहां पे ऑर्डर ले रहे हैं और लेके चले जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा मेन है, हम आ जाते हैं रूम्स। रूम्स का इसमें क्या है कि जब हम किसी होटल में जाते हैं, अभी वहां पे क्या होता है, वहां पे रूम्स, हम गए कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो हमें वहां पे रूम, होटल में रूम बुक करना पड़ता है। तो अब वहां पे जो बंदा बैठा है उसको ये भी देखना होता है, जो भी हमारा वहां पे सीनियर होता है, जो हमारे रिसेप्शन पे मिलता है, उसको हमें ये वो बंदा ये देखता है कि हमारे पास कौन सा रूम है जो फ्री है, कौन सा रूम है जो बुक है। तो उसके लिए ये प्रॉपर ये है कि जैसे हम रूम अवेलेबिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाएगा कि हमारे पास कितने रूम है और कौन कौन से रूम बुक्ड है, कौन कौन से रूम फ्री है। बुक्ड इन द सेंस जो आपको रेड कलर में दिखेगा वो बुक्ड है और ग्रीन कलर के जितने हैं वो सारे आपके फ्री हैं। अभी जो हमारा बुक्ड रूम है, अब वो ये देखना चाहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, कैंसिल करना है, पेमेंट का है, ये हमारा प्रॉपर बुक्ड रूम है। अपडेशन के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर डिटेल देख सकते हैं कि क्या गेस्ट है, किस गेस्ट ने कब आया है, कैसे, मतलब किस डेट को आए हैं और कितने दिन के लिए उनका बुकिंग है, अभी वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं फ्रेश रूम बुक करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी सारी डिटेल देखेंगे। हम यहाँ पे 201 रूम बुक कर रहे हैं। चेक इन, अभी यहाँ पे जैसे हम चेक इन पे एंटर करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। रूम नंबर आ गया, आपका गेस्ट की डिटेल आ गई। गेस्ट की डिटेल अगर आपको फिल करनी है तो यहाँ पे आप प्रॉपर गेस्ट की डिटेल फिल कर सकते हैं। मेल आईडी वगैरह आप सारी चीज यहाँ पे, आधार कार्ड नंबर इनके है, स्टेट, जीएसटी नंबर अगर कंपनी है तो, देन उसके बाद कंपनी का नेम, आईडी प्रूफ अगर आप अटैच करना चाहते हैं उनकी, जो भी हम पर्सन है उनकी आईडी प्रूफ भी अगर अटैच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी या आप उनका ओरिजिनल आईडी प्रूफ स्कैन करके एक फोल्डर में रखेंगे और उस फोल्डर से हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। जब भी आप वो फोल्डर में वो रखते हैं, वो यहाँ पे सारी डायरेक्टरी आपको ओपन करेगा, किसी भी फोल्डर में आप रखो वो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो और जब भी इन फ्यूचर आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पर्सनल डिटेल है, ये आप सारे फिल करोगे। ये टाइम एक्चुअली हमारे जो सिस्टम का टाइम है वो ले रहा है, इसलिए वो वहाँ पे दिखा रहा है और टाइम चेंज कर देता हूँ इसको। कितने दिन के लिए आए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये आप इसको सेव कर देंगे। अभी आप देखेंगे हमारा जो 201 नंबर का होटल जो रूम है वो हमारा रेड, मतलब हमारा बुक हो चुका है। अभी जब भी हम किसी कोई और हमारे गेस्ट आते हैं तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि किस रूम में कौन सा हमारा रूम बुक है, किस रूम को हमें उसको अलॉट करना है। अब इन केस जैसे ही वो रूम 101 को मैं ओपन करता हूँ, उन्होंने क्या किया, किचन में अभी कोई भी रूम पे रहेगा तो वो खाने पीने की सारी चीजें आपको यहाँ पे वो ऑर्डर करेंगे।
देन यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है कि किचन के लिए क्या क्या चीजें वो मंगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज उनको ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर कर सकते हैं। देन हम इसको प्रॉपर सेव कर देंगे। अभी क्या हुआ कि वो 101 रूम में जो भी था वो उनको चेकआउट करना है। उनको जब भी चेकआउट करने के लिए जाना है या कैंसिल करना, आई मीन कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी ऑलरेडी उनका एक दिन का बुकिंग चल रहा है, तो अभी वो पेमेंट करना है, उनको चेकआउट करना है। तो हम जाएंगे पेमेंट पे। पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो रूम 101 को जैसे ही सेलेक्ट करके एंटर करेंगे वो सारी डिटेल वहां पे ला देगा। कितने दिन हुआ है उनको, उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, क्या क्या चीजें उन्होंने मंगाई थी उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। फिर आप यहाँ पे रेट एंटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी रेट है उसका, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये पर डे चार्ज है जो हमने रूम का मास्टर क्रिएट करते टाइम हमने जो एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन लेके आ रहा है कि पर डे का कितना चार्ज है। यहाँ पे हमारा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। कार्ड पेमेंट आप कर रहे हो तो कार्ड पेमेंट, इनकेस कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश पेमेंट, या बैंक से कर रहे हैं तो चेक के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल। उसके बाद ये हम प्रिंट पे भी देख लेते हैं। इसका जो प्रिंट आएगा ये प्रिंट आपका प्रॉपर आ जाएगा कि जो आपका रूम का था उसका मेल थे फीमेल कितने थे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि उस रूम में कौन से लोग थे, क्या थे, सारी चीज़। और ये आपकी पार्टी की डिटेल जिनके नाम से जिनका आपने आइडिया लिया वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। कभी आप आए थे और कभी आप चेकआउट करो वो टाइमिंग यहाँ पे दिख जाएगी और टोटल आपका जो अमाउंट हुआ है। इसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पे। अभी जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारा रेस्टोरेंट रिपोर्ट दिख रहा है, स्टॉक समरी दिख रही है। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट में देख लेते हैं। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें आइटम वाइज रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन सी आइटम है, किस क्वांटिटी में कितना है, पर डे वाइज आप देख सकते हो, अमाउंट कितना सेल हुआ है, या आप यहाँ पे डेट का हमने फिल्टर दे रखा है, डेट वाइज आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ किस डेट के अंदर कितना सेल हुआ है। डेली कलेक्शन की रिपोर्ट यहाँ पे आपको आ जाएगी कि पर डे का जो कलेक्शन हुआ है रेस्टोरेंट से वो कितना है, वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेली चेक इन की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि जो भी बंदे जिस दिन भी जो बंदे आए हैं, जितना जो भी लोग आए हैं उनके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं डेट वाइज किस डेट को कौन से लोग आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके बाद चेकआउट डिटेल, यहाँ पे कितने लोग आए थे, कौन कौन से लोग चेकआउट कर चुके हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आएगा कैश सेल्स। यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फिल्टर मिलेगा डेट का कि आपके डेट के फिल्टर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक ऑप्शन है वो है गेस्ट वाइज रिपोर्ट, आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारी चेक इन की रिपोर्ट है बट वो गेस्ट वाइज हमने दे रखा है, नाम के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एम्पटी रूम की डिटेल, जो रूम हमारे खाली हैं वो रूम की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे 101 का जो था, 202 का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कौन सा रूम खाली था, कौन सा बुक है, वो सारी चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आएगा रूम का रिजर्वेशन की सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। कौन से रूम का था, ये बेसिकली है जो हम रूम बुक मतलब चेक इन करने से पहले जो ऑर्डर देते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टॉक समरी। बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट वाइज है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या क्या क्वांटिटी थी, कितना उसका बिलिंग हुआ है, क्या चीज़ें हैं उसकी, ये अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So done from my side. Once again, thank you everyone for joining. So I request to Deepa ma'am to continue the session. Thank you so much, Sahil. Sahil, your voice is lacking. Is it only for me or to the a complete team? I don't know. Anyways, you are done from your end, right, Sahil? Yeah, ma'am. Okay. Thank you so much, Sahil, and you can stop sharing your screen. Okay, now moving ahead towards the question and answer session.
So like request Mr. Ankit, are you here? Yes, ma'am. Hi, Mr. Ankit. Ankit, just check out if there is any questions from the customer's end. Sure. Okay, by the meantime, as I already said, we are part of multiple services as well as softwares. So if you are in need of any software, request you to please do connect us, or for any information onto today's webinar as well, you can connect us to know much more information onto the today's webinar as well as about our services and the softwares what we deal with. So, Mr. Ankit, is there any other question? Not as of now in the charts. I will request if Okay. anyone. Okay. Anyways, we will be updating the video in the YouTube channel as well. So request you to just check out our YouTube channel for further information. And beyond that, as I can be very specific, hotel module is only for hotel industries. So there might be multiple chances wherein the generic clients who attend our webinar would not be that happy onto the module. But yes, you can even refer the people who are into like hotel industry, or else you can do connect us. We can even form this in a different way for you as well. So this is all about the add-on. So request you to do connect us onto to take much more information onto all these things. So thank you so much, Mr. Sahil, and thank you so much, Mrs. Diksha, for your wonderful presentation. I hope, Ankit, no more questions, right? No, ma'am. All right. So that's it for today, guys. Thank you so much for joining us, and request you to do connect us for the feedback specifically. If you provide us the feedback, we can just focus onto the feedback and we can just move ahead for the next webinar's topic. So thank you. Stay tuned for the next webinar. Take care.